إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حاضرین جمعہ، بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، انگنت نعمتیں ہماری اوپر نچھاور فرمائی، انہی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں میں سے ایک نعمت اسلام اور اس سے بھی اعلیٰ نعمت توحید عطا کیا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. درود و سلام کے نچھاور ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً بالخصوص آمینہ کے لال تاجدار مکہ و مدینہ، احمد مجتبی و مصطفیٰ، خاتم النبیین والمرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی بہترین تعلیمات کے ذریعے سے ہم گمراہ کن انسانوں کو رشد ہدایت کا ایک بہترین پیکر ملا. حاضرین جمعہ، انسانی زندگی کے اندر مصیبت، پریشانیاں، غم، ڈپریشن، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف، رب العالمین کو یاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ بیان کرنے والا ہے، کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض کو بھی ادا کرتا ہے، بندے کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور تگودو کوششیں کرنے کے بعد بھی آدمی پریشانیوں میں رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، تو ایسا شخص اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آزمائش ہے. بالخصوص یہ آزمائش انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، یا اسی طریقے سے اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک وہ قسم ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ہم نیک ہو، پرہیزگار ہو، پھر محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر کسی مصیبت اور پریشانی میں الجھ جائیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری آزمائش کر رہا ہے، ہمیں اس آزمائش میں کس اعتبار سے کھڑا اترنا ہے. ایک وہ آدمی جو گنہگار ہے، عبادت گزار نہیں ہے، نہ رب کے حقوق کا خیال، نہ نبی کی شریعت کا کوئی خیال،
न अल्लाह और उसके रसूल की बातों का कोई ख्याल, न हुकूकुल इबाद का कोई ख्याल, और उसके बाद वो बंदा कहता है कि मुसीबत में हूं, परेशानियों में हूं, उलझन में हूं, डिप्रेशन में हूं, तो ऐसे आदमियों को समझना चाहिए कि इसके साथ ये आजमाइश नहीं है, इसे आजमाइश से नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि ऐसे आदमी के ऊपर रब्बुल आलमीन का अजाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के सूरह अश-शूरा के आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हारे ऊपर जो कुछ मुसीबत परेशानियां आती हैं, जिस मुसीबत में, परेशानी में, डिप्रेशन में तुम आते हो, फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई देन है, तुम्हारे हाथों की करतूत है जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत और परेशानियां आई हुई है। वयाफू अन कसीर, अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह पर पकड़ करना चाहे तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम इस लायक नहीं है कि रब्बुल आलमीन हमें एक बूंद पानी दे सके। आप अगर दूसरी जगह पे देखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 41 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, ज़ाहरुल फसाद फिल बर्रि वल, अल्लाह ताला ने कहा कि खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो गया। क्यों? उसके रीजन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत करीमा में बयान किया, बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के हाथों की करतूतों की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से, उनके बदअमालियों की वजह से। लिहाजा जो कुछ मुसीबत आती है, जो कुछ परेशानियां आती हैं, ये हमारे गुनाहों की वजह से होती हैं। आज हम गुनाहों में मुलव्विस मेरे भाइयों, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है, हमें मालूम है कि हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, गुनाह हो रहा है। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों पे ऐसा जंग लगा दिया है कि हिदायत का रास्ता हमें नसीब नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, आइए मैं ऐसे मशहूर गुनाह जिसे इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल कबाइर के अंदर इसे नकल किया है, यकीन मानिए कि अगर उन गुनाहों के अंदर हम मुलव्विस हैं और अगर हमने इनसे तौबा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार नहीं किया, फिर जिंदगी भर रोना रोइए, परेशानियों को लोगों के दरमियान बयान कीजिए, ना आपकी परेशानी खत्म होगी और दुनिया के अंदर भी मुसीबत, और मरने के बाद जो कुटाई होगी कब्र के अंदर और रब्बुल आलमीन के पास मैदान महशर में, उसकी बात अलग है। आइए मैं आपके सामने चंद उन पॉइंट्स का जिक्र करता हूं जो आज हमारे माशरे में सुलगते हुए गुनाह हैं, जिसे हमें एहसास तक नहीं हो रहा हम कर रहे हैं। सबसे पहले अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। यह आदमी की जिंदगी में, उसकी हालाती जिंदगी और उसके माशी तौर पर हर एतबार से असरअंदाज होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के बारे में, उसकी नहुसत के बारे में कुरान में कई जगह पर जिक्र किया। आपको मालूम है कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेगा रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देगा। आपको यह भी मालूम है कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। आपको ये भी मालूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में एक जगह पे फरमाया, अल्लाह ताला कहता है इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अल्लाह ताला ने बयान किया काफिर कभी फलाह नहीं पा सकते। जो शिर्क करने वाला होगा, मुशरिक होगा, रब के अलावा किसी और को मानने वाला होगा, वो लाख रोना रोने कि मेरी तिजारत नहीं चल रही है, मेरी बच्चियों की शादियां रुकी हुई है, मेरे घर में परेशानियां हैं, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं, मैं रोज गोलियां खा रहा हूं, और अपने रब के साथ शिर्क करता रहे, अल्लाह कभी उसे माफ नहीं करे। शिर्क कौन सा? वो शिर्क नहीं जो हम समझ रहे हैं कि किसी पेड़ के आगे जाकर सजदा कर लेना, किसी मूर्ति के आगे जाकर सजदा करना, नहीं। आज शिर्क हमारे घरों के अंदर हो रहा है, आज शिर्क हमारे घरों के अंदर हो रहा है। हमारा बच्चा हमारे सामने कहता है तेरी कसम, उसकी कसम, उसके माँ की कसम, मेरी माँ तेरी कसम। शिर्क, शिर्क है। आज हमारे घरों में हमारे खवातीन अपने अकीदे को के अंदर बिगाड़ पैदा करती जा रही हैं। अगर उनके घरों के अंदर कोई परेशानी आ जाए, उनका बच्चा बीमार हो जाए, या अल्लाह ना करे अगर वो पेट से नहीं हो रही, अमूल से नहीं हो रही है, उसकी वजह से न जाने किस किस के दर दर पर भटकती है, न जाने कौन से तावीज गंडे का सहारा लेती है। शिर्क है, शिर्क है, इसे रोकने की जरूरत है। आज हमारा बच्चा
सुबह उठता है, हमारा भाई सुबह उठता है, तिजारत के लिए निकलता है, कारोबार के लिए निकलता है और कहता है मैंने फला का मुंह देख लिया, आज मेरे पूरे दिन की जो रोजमर्रा के लाइफ में तो आज का दिन पूरा खराब चला जाएगा। शिर्क है। रुको रुको नौजवानों, अपने अकीदे से बिगाड़ पैदा मत करो। याद रखना, अकीदे में बिगाड़ पैदा हो गया, अल्लाह की कसम तुम दुनिया की सारी दौलत को हासिल कर सकते हो, रब के पास जन्नत हासिल नहीं कर सकते हो। याद रखना, अपने बच्चों की इस्लाह करो, वरना लुकमान हकीम अपने छोटे से बच्चे को शिर्क से डरा रहे, इसका क्या मतलब? बाप इतना नेक बेटी को नसीहत कर रहा है, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इससे यह पता चलता है हमें अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, अभी से उनकी तरबियत पर गौर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा बड़ा होते होते हमारे हाथों से निकल जाए, आज छोटा शिर्क कर रहा है, आज इसकी उसकी कसम खा रहा है, कल रब्बुल आलमीन का बागी भी हो सकता है, कल अल्लाह का बागी भी हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि हमें उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और आज ये बीमारी और ये बुराई, ये वबा हमारे घरों के अंदर पाई जा रही है। खैर, उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबत और परेशानियां, डिप्रेशन के दूसरे पॉइंट ये हैं कि सूद का खाना और रिबा, सूद का खाना, सूद का कारोबार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया रिबा, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल और सूद को हराम कह दिया है। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़ाबा मुज़ातन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ईमान वालों, और बात याद रखना, जहां भी रब्बुल आलमीन ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, इसका मतलब यह है कि रब्बुल आलमीन किसी अहम बात की तरफ नसीहत करना चाहता है, किसी अहम बात की तरफ लोगों को मुतवज्जह करना चाहता है। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, अपने कारोबार के अंदर, अपने माल के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू, ईमान वालों अपने माल को बढ़ा चढ़ाकर घटाकर मत खाया करो। ये सूद है, ये सूदी कारोबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। आप अगर दूसरी जगह पे देखेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद रह गया अभी छोड़ दिया करो, अभी छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो याद रख लेना, तैयार हो जाओ फज़रु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए। सूद बहुत आम हो चुका है। सूद यही पर नहीं है कि हम लोन से पैसा उठा रहे हैं। आज का नौजवान कारोबार नहीं करता है, कहीं मजदूरी करता है, 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करता है, अभी एक मोबाइल की किस्त खत्म नहीं हुई है, दूसरे मोबाइल की तरफ वो झुक जाता है। नया फोन आया, नई एंड्रॉइड मोबाइल लेने के लिए अपने उस पैसे को जाता है वहां पर और एमआई का मोबाइल खरीद लेता है, हफ्ते पे मोबाइल खरीदता है। गाड़ी का शौकीन है, अभी गाड़ी पुरानी भी नहीं हुई, दूसरी गाड़ी लॉन्च हुई, पैसा डाला वहां से उठा लिया। बच्चों अल्लाह के बंदो, बच्चों अल्लाह के बंदो, ये सूद है, याद रख लेना, ये सूद है, सूद हराम है। इस्लाम के अंदर सूद हराम है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग के लिए तैयार रहना। और अल्लाह का जंग क्या है? अल्लाह का जंग क्या है? अल्लाह का जंग यही है कि तुम सूदी कारोबार में रहोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे। सूदी कारोबार वक्ती तौर पर तुम्हें तरक्की दिखा सकता है, याद रखना। वक्ती तौर पर तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत बड़ा बनता जा रहा हूं, लेकिन उसकी हकीकत यही है कि वो आपको दीमक की तरह खाता जाएगा, जिस तरीके से दीमक लकड़ी के अच्छी लकड़ी को अंदर से खत्म कर देता है, खोखला कर देता है। इसमें हमारी माँ और बहनों की भी बड़ी कमियां पाई जाती हैं। जिनका शौहर कम कमाता है, वो हमारी माएं बहनें अपने शौहर को डिप्रेशन में डालती है, उन्हें टार्चर करती है, कहीं से भी लाओ, कुछ भी लाओ, हमें लग्जरी आराम दो, हमें लग्जरी लाइफ दो। और बेचारा वो क्या करे, बीवी का टेंशन है, घर का टेंशन है, न जाने कहां कहां जाकर वो सूदी कारोबार करता है, लोगों से पैसे लेता है, हफ्ते पे पैसे लेता है, महीने पे पैसे लेता है, बैंक से पैसे लेता है, उसे ले जाकर अच्छे से अच्छे फ्लैट में रखता है। याद रख लेना, ये चंद दिनों की जिंदगी, आप अपने घर को तो उजाला कर सकते हो, लेकिन अपने कब्र को उजाला नहीं कर सकते मेरे भाइयों। छोड़ दो सूदी कारोबार को। अगर जिंदगी के अंदर चाहते हो अमन हो, चैन हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, राहत हो, छोड़ दो सूदी कारोबार को। अल्लाह ने जितना दिया है बिना पसंद इख्तियार करो, कम है कम में गुजारा करने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं लोग तुमको क्या कहेंगे, जितना रब ने दिया उतना ले लो। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मर गए तुम्हारा पेट नहीं सूद भरेगा, लोगों के पास जाएगा माफ करवाने के लिए। लिहाजा अल्लाह के बंदो,
सूदी कारोबार को छोड़ दो, अगर ये चीज हमारे अंदर पाया जाता है, ये बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है, तो हम लाख रोने कि हमें बहुत परेशानी है। अल्लाह की कसम, तुम अल्लाह से बगावत कर रहे हो, जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकते हो। ये दूसरा रीजन हमारी जिंदगी के अंदर डिप्रेशन का। तीसरा पॉइंट जो आज हमारे माशरे के अंदर सुलगता हुआ मौजू है, माल की मोहब्बत, माल की हिर्स, और उसको पाने के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज को भूल जाना। माल की मोहब्बत, आने दे माल की मोहब्बत। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस देखते हैं, सही बुखारी की रवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अल्लाह के रसूल कहते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिन माल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर उम्मत की आजमाइश है, हर उम्मत के लिए आजमाइश है। मेरी उम्मत की आजमाइश उसके माल के अंदर है, मेरी उम्मत की आजमाइश उसके माल के अंदर है। अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया। इसीलिए अल्लाह के बंदो, कस्बे हलाल की तरफ फोकस करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह बकरा आयत नंबर 172 के अंदर अल्लाह कहता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबाति व आमिलू सालिहात। ईमान वालों को अल्लाह ताला ने कहा, पाकीज़ा रिज़्क खाया करो, पाकीज़ा रिज़्क, साफ सुथरी रिज़्क खाया करो। इसमें आमिलू का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, इससे पता चला कि नेक अमल के कबूलियत के लिए शर्त यह है, नेक अमल की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि आप जो माल खा रहे हो ना, वो पाक होना चाहिए, ताहिर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। हराम का माल खाकर तुम लाख इबादतें कर लो, रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करो, अल्लाह कभी खुश नहीं होगा आपसे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर रवायत आपने सुना होगा, वक्त की बड़ी किल्लत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, एक आदमी है जिसके ऊपर सफर के असरात नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि मुसाफिर की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी ने बयान किया, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द कर देता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, क्या मामला है? आपने फरमाया, उसका लिबास हराम का है, उसकी कमाई हराम की है। मेरे भाइयों, आप हराम की कमाई कमाते हो, याद रख लेना तुमचार की जमात, याद रख लेना तुमचार की जमात। अल्लाह की कसम, अगर तुम हराम कमाओगे, उसकी नहुसत तो तुम्हारी फैमिली पे आएगी, तुम्हारे बीवी और बच्चों पे आएगी। छोड़ दो हराम कमाई, कम कमाओ, जितना रब ने दिया है उसी में कनात पसंदी इख्तियार करो, ज्यादा कमाने के चक्कर में। और याद रखना, हलाल की तरफ भागोगे, रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत देगा। सहाबा की जिंदगियां उठाकर देखो, अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का से जब मदीना आए, क्या लाए? बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, माल दौलत चला गया, सब कुछ चला गया। अल्लाह के नबी ने मुआखात कराया, भाईचारे भी कराया। एक सहाबी कहते जिससे कराया गया था, कहा मेरी इतनी बीवियां, जिसे पसंद करो उससे तलाक देता हूं, इज्जत मुकम्मल होगी, निकाह कर लेना, मेरे पास इतना माल है, ये तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। कहा नहीं, क्या कहा, मुझे तिजारत के लिए बाजार का रास्ता बताया जाए। वही अब्दुर्रहमान बिन औफ है, घी और पनीर का बिजनेस शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत देता है। मेरे भाइयों, तिजारत के अंदर बड़ी बरकत अल्लाह ने दिया है। तिजारत करो, लेकिन हराम कमाई से अपने आप को बचा लो। ये चंद दिन की जिंदगी है, चंद दिनों के अंदर न जाने हमारी आखिरी सांस कब और कहां खत्म हो जाए, हमें नहीं मालूम। तिजारत के अंदर अगर हराम कमाओगे, रब भी नाराज होगा। और ये हुकूकुल इबाद है, लाख तौबा इस्तगफार तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाद जाने के बाद कराए, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। लिहाजा तीसरा अहम पॉइंट यह है, हराम तिजारत से अपने आप को रोक लो, वरना हराम तिजारत जन्नत से महरूमी है। हराम तिजारत दुआ कबूल नहीं होती है। हराम तिजारत की कमाई से इबादत के अंदर कोई असर नहीं आएगा। आप हराम कमाओ, अगर लाख तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करो, आपका ज़हन भटकता हुआ नजर आएगा। लिहाजा अगर सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, तो हलाल की तरफ तवज्जो दो, हराम कमाई से अपने आप को बचा लो। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अगर इंसानी जिंदगी के अंदर आज हमारे अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, हमारे रिस्क के अंदर बेबरकती पाई जाती है, हमारी फैमिली के अंदर परेशानियां पाई जाती है, उसका अहम रीजन ये भी है कि आज हमने अल्लाह के रास्ते में अपने माल को रोक लिया। अल्लाह के रास्ते में हमने अपने माल को देने से रोक लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्चा करो, अल्लाह का वादा रब्बुल आलमीन तुम्हें डबल करके देगा।
दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी यही इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने बयान किया, ऐ ईमान वालों, अपने माल को रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्चा कर लो, इससे पहले कि न तुम्हारी तिजारत काम आएगी, न तुम्हारा कारोबार काम आएगा, न किसी की सिफारिश काम आएगी। अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा, याद रखना, जिस लायक हो यही तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट है, यही तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट है। अब मौजूदगी में जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मसाजिद का ख्याल करो, गरीबों का ख्याल करो। माल को जमा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि यही माल तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। अल्लाह के पास तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इस माल का। आप अगर 10 रुपए के लायक हो, अपनी मस्जिद के अंदर 10 रुपया दिया करो। आप 100 के लायक हो, अपनी मस्जिद के अंदर 100 रुपया दो। यही माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, यही एक मिसाल देते हुए अल्लाह ने फरमाया, एक वो अनाज का दाना जो बीज डाला जाता है, उससे बालियां होती है, एक बाली से 100 दाने होते हैं। लिहाजा आपका एक एक रुपया अल्लाह ताला के पास वो सदका बछड़े के मानंद परवरिश पाएगा। मेरे भाई, ये मौका है, दे दो। मरने के बाद बच्चे चंद दिनों तक कहते मेरे बाप के हक में सदका देना है, कहीं कुरान देना है, कहीं हदीसें देना है, किसी गरीब की मदद करना, ये वक्ती तौर पे है। आज आप मौजूद हो, अपनी फिक्र कर लो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और अपनी जिंदगी के अंदर अपने नफ्स में मुहासबा करो कि तुमने कल की क्या तैयारी की है, कल के लिए क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी एक आयत करीमा के अंदर 2 जगह पे तक़वे के बारे में बयान किया। उसके बाद कहा कि जो कुछ तुम अमल कर रहे हो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला हर अमल से खबर है। मेरे भाइयों, लिहाजा आज ये भी एक रीजन है हमारी बेचैनी का कि आज हमने माल को लेना तो सीखा है जो रब तुमको दे रहा है। सोचो तो सही, क्या लेके आए थे गांव से, आज रब ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया। अल्लाह के बंदो, इस माल का सही इस्तेमाल करो, वरना यही माल तुम्हारे लिए बाइस रहमत बन जाएगा। रब ने माल दिया है, इसे बाइस रहमत बना लो। इस माल को अपने रब के रास्ते में अल्लाह को खुश करने के लिए सदका किया करो, मसाजिद का ख्याल किया करो। इससे पहले कि तुम्हारी दुनिया छोड़ जाने के बाद तुम्हारे पास सिवाय अफसोस के, सिवाय हाथ मलने के कोई चीज काम ना आएगा। अगर तुम इस दुनिया के अंदर सदका करके जाओगे तो रसूल की हदीस उठाकर देखो, अल्लाह के नबी ने कहा, इंसान, जब इंसान मरता है सारी चीजें मुनक़ते हो जाती हैं सिवाय 3 चीजों के। उसी में से आपने फरमाया, औ सदक़तिन जारिया, औ सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया अगर तुमने कर दिया है, मसाजिद के अंदर खर्च किया, मदारिस के अंदर खर्च किया, किसी गरीब बच्चे को तुमने तालीम दे दी है, याद रख लेना दुनिया की सारी दौलत से बेहतर तुम्हारी यही फिक्स डिपॉजिट जो तुम्हारे काम आने वाली है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, अगर जिंदगी के अंदर सुकून चाहते हो तो जो रब का माल लेकर इकट्ठा कर रहे हो, भर रहे हो जेब, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा थोड़ा दिया करो जितना अल्लाह तौफीक दे, वरना बखीली करोगे। अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 2 सुबह के वक्त तो फरिश्ते आते हैं और माल खर्च करने वाले के हक में कहते हैं, अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन इसके माल में बरकत दे। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में तुम माल को खर्च करोगे, फरिश्ते तुम्हारे हक में बरकत की दुआ करेंगे, रब तुमसे खुश होगा। और वही फरिश्ते जो बखीली करता है, कंजूस आदमी, मक्खीचूस बखील आदमी, न दुनिया के अंदर उसकी कोई इज्जत रहती है, न रब के पास कोई इज्जत रहती है। फयाज बनो, सखावत करो, पर सखावत से मुराद ये भी नहीं है कि आप इंसराफ खर्चा, फजूल खर्ची करो, या सखावत से मुराद ये भी नहीं है कि आप अपने प्रॉपर्टी को बेच के लाकर मस्जिद के अंदर दे दो। नहीं, अल्लाह ने जिस लायक रखा है आपको खुद मालूम है, अल्लाह से उतनी डरो जितनी डरने की ताकत है। जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, सखी बनो, फयाज बनो, यही काम आने वाला है। लिहाजा बातें बहुत ज्यादा है। आखिर पॉइंट ये है कि गुनाहों की कसरत की वजह से आज हमारे हालात, हमारी जिंदगी के अंदर बेचैनी, बेइस्तराबी, सुकून खत्म हो चुका। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि आज गुनाहों की कसरत है, बेहयाई की कसरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल अब्दा, जब अल्लाह का बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लिया तो वो नुक्ता खत्म हो जाता है, तौबा नहीं किया वही नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरा दिल उसका काला हो जाता है। फिर अल्लाह ने कहा कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर, कल्ला रअना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, पूरा दिल जब काला हो जाता है, हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। अल्लाह के बंदो, अभी भी वक्त है,
वक्त है, आओ अपने रब की तरफ, आओ अपने रब की तरफ, आओ झुको अपने रब की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिगफार कर लो। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जितनी बातें बयान की गई हैं और सी बातें थी कि इंसानी जिंदगी में बेचैनी के असबाब क्या क्या हैं कि जिसकी वजह से इंसान परेशान हाल है, लिहाजा पूरी बातों का खुलासा यही है कि अपने आप को बिना पसंदी इख्तियार करो, रब की तरफ अपने आप को झुकाओ ज्यादा करो, मसाजिद से अपने आप को जोड़ दो, नमाजों के पाबंद बन जाओ, बेनमाजी जिंदगी भर बेचैनी में रहता, याद रख लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कल्बुल मुअल्लक़ फिल मसाजिद, उस आदमी की फजीलत अल्लाह के नबी ने बयान किया जिसका दिल मस्जिद में लटका हो, मस्जिद से जिसे मोहब्बत हो, नमाज से जिसे मोहब्बत हो, रब के पास, अल्लाह के पास कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, ऐसा नमाजी, ऐसा नौजवान, वो शायद शबी इबादतिल्लाह। नौजवानों, खास तौर से नौजवानों की जनाब में एक नसीहत कर रहा हूं, याद रखना, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कई ऐसे वाकयात आपके सामने होंगे। अभी कुछ दिनों के पहले का वाकया मेरे साथ हुआ, मैं एक लड़के का खुद रिश्ता लगवाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, रिश्ता फिक्स हुआ, डेट पक्की हुई और अचानक उसके सर में दर्द शुरू होता, अल्लाह के पास प्यारा हो जाता है। नौजवानों, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, अपने आप की इस्लाह करो, अपने आप की इस्लाह करो, अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, मसाजिद से अपने आप को जोड़ लो, यही वक्त है, यही वक्त में जितना तुम रब के करीब आओगे गुनाह तुमसे दूर होता जाएगा, शैतान तुमसे दूर होता जाएगा। आखिरी पॉइंट यही है कि रब ने जिस लायक दिया है अपने मस्जिद को मजबूत करो, अपने मस्जिद को मजबूत करो, अपने मस्जिद की हर एतबार से उसका ताउन करो, यही ताउन तुम्हारे पास रब के अल्लाह के पास ज़ख़ीरे आखिरत बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें ज्यादा से ज्यादा ए रब्बुल आलमीन तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो गुनाह हमसे जिंदगी में हो रहे हैं रब्बुल आलमीन, इस गुनाहों पे हमें नादिम होकर शर्मिंदगी के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी लग़्ज़िशों को, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम अपनी जिंदगी के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।